गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देव्यां एवं सज्जनों, समवस्थित समस्त कलाकारों, संगीत प्रेमियों, ये उत्सव जो हम यहाँ मना रहे हैं, संगीत सभा और यहाँ लिखा है फाइन आर्ट फेस्टिवल। तो यह जो कला है, संगीत, ललित कला, ये क्या है जिसका आनंद लेने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हैं। एक শিল্পত্ব, এটা কি জিনিস? এখন এখানকার অনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত দিচ্ছি। এর হলের ভিতরে সঙ্গীতের অনুষ্ঠান চলছে, আবার বাইরে পেন্টিং রেখেছে, ওদিকে একটা জায়গা, এদিকে একটা জায়গা। এখানে ব্যানার যেটা করেছে দুটো ভাগ করেছে, এদিকে ফাইন আর্ট হয়ে গেছে, ওদিকে সঙ্গীত। কিন্তু এই জিনিসগুলো কিন্তু এগুলো কি আলাদা আলাদা? তাহলে এরা জিজ্ঞেস করতে পারবে এই সঙ্গীতের সঙ্গে ও ফাইন আর্টটাকে কেন রাখবে? পেন্টিং এর সঙ্গে সঙ্গীত কেন রাখছে? আলাদা আলাদা যদি হয় তাহলে এই যে শিল্পটা, তার অর্থ কি, তার মূল তত্ত্ব কি? শিল্পটা যেটাকে বলা হয়, তার মধ্যে একটা সুন্দর থাকে, যেটাকে শুনলে দেখলে আমরা আনন্দ পাচ্ছি। তার মধ্যে একটা ভাব থাকে, যে যে রকমের শিল্পটা হয়, গান বাজনা, নৃত্য, ছবি, একই জিনিস। আমরা তো তখনই আনন্দ পাচ্ছি যখন আমরা এর মধ্যে যে সুন্দর আছে, যখন আমরা এইটাকে শুনছি, এইটাকে দেখছি। কিন্তু এই সুন্দরটা কোথায় থেকে আসে? এখন আমরা এই যে রকম করে এই জিনিসগুলোকে আলাদা আলাদা করে রেখেছি। এখানকার বন্দোবস্তের ব্যাপারটা আমি বলেছিলাম। ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে ওখানে একটা পেন্টিং এর ডিপার্টমেন্ট আছে, সঙ্গীতের একটা আলাদা ডিপার্টমেন্ট আছে, সাহিত্য আছে, তাদের একটা আলাদা। এখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে দেখবেন একটা সঙ্গীত নাটক একাডেমি রেখেছে, ওখানে একটা ললিত কলা একাডেমি রেখেছে, সাহিত্য একাডেমি রেখেছে, আলাদা আলাদা করে। তার মানে কি এগুলো আলাদা? কিন্তু আলাদা আলাদা তো হতে পারে না। কেন? সাহিত্য যেটা সঙ্গীত ছাড়া এটা, তাতে কি হবে? সঙ্গীত যেটা, গান যেটা, সাহিত্য ছাড়া তো থাকতে পারে না। শিল্পটা যেটা, এর মধ্যে
যদি এই সুন্দরটার ভাবটা না থাকে, তাহলে এটা মানে সাহিত্যের ছাড়া, সঙ্গীতের ছাড়া, নৃত্য নাটক এগুলো আছে, তাদের ছাড়া কি করে থাকতে পারে? সেটা তো কিন্তু আজকে দিনে যেরকম বন্দোবস্ত করে দিয়েছে, আমরা আলাদা করেছি, কিন্তু এই জিনিসগুলো এমনি তো আলাদা হয় না। সেটা আমরাও করেছি। কেন করেছি? নিজেদের সুবিধার জন্য করেছি, কিন্তু এটা করে এবার খুব ভুল করছি। এটার অর্থ কি? এই যে শিল্পটা, নানা রকম আর্টস, যেটা তারা একটা ফ্যামিলি মতো থাকে, তাদের একটা পরিবার আছে। এই পরিবারের মধ্যে, পরিবারটা তো মানে একসঙ্গেই থাকতে হবে। তাদের মধ্যে বিশ্বাস আছে, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, তাহলেই ভালোভাবে থাকতে পারবে। এখন আমরা ওইগুলো আলাদা করেছি, যেমন স্টেজে এনেছি, এখানে একটা সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হবে, ওখানে একটা পেন্টিং এক্সিবিশন হবে, তার মধ্যে সঙ্গীত থাকবে না, এখানে পেন্টিং থাকবে না। ওখানে একটা নৃত্য অনুষ্ঠান হবে, একটা নাটক হবে, আলাদা আলাদা করে রেখেছি। কিন্তু একসঙ্গে কোথায় চলে? এই জায়গাটা হচ্ছে এই শিল্পটা তার মূল জায়গা, যেখান থেকে সবার জন্ম হয়েছে। সেটা হচ্ছে মন্দির, ঈশ্বরের জায়গা। সেখানে কোনোদিন আলাদা আলাদা করে সঙ্গীত হবে না, সাহিত্য হবে না, ছবি হবে না, কিচ্ছু হবে না, একসঙ্গে চলে। কেন? সেখানে এই যে শিল্পটা আছে, তার একটা উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বরের আরাধনা। এই আরাধনা, পূজা, সেবা করার জন্য সবাই একসঙ্গে মিলিয়ে চলে। আমরা যদি এই জিনিসগুলো ওখান থেকে সরিয়ে নিই, একটা অনুষ্ঠানে আছে, অনুষ্ঠানের মধ্যে হবে কি, এই যার মন্দিরের উদ্দেশ্য থাকে, এর কিন্তু আর উদ্দেশ্য থাকবে না, ও নিজেও উদ্দেশ্য হয়ে যাবে। নিজে যদি উদ্দেশ্য হয়ে যাবে, তার মধ্যে অহংকার আসে, নিজের যে পবিত্রতা সেটা থাকবে না। কিন্তু মানে যে শিল্পী সেরম ভাবে করে, তার কিন্তু সেবা ভাবটা, ভক্তির ভাবটা, সেটা চলে যায়, সেটা নষ্ট হয়ে যায়। সেটা নষ্ট হয়ে গেল, সঙ্গীত, আর্ট যেটা, ওই জিনিসটা নিজেও নষ্ট হয়ে যায়। কেন? এই যে মূল আছে, সঙ্গীতের মূল কি, শিল্পটার মূল কি, নৃত্য তার মূল কি, নাটক, সাহিত্য, মূল যেটা হচ্ছে ভক্তির ভাব, ঈশ্বরের সেবা, পূজা। ভক্তির ছাড়া কোনো আর্ট থাকতে পারে না, জন্ম নিতে পারে না। কেন? এটা নিঃশ্বাস আছে, তার প্রাণ আছে, তার আত্মা আছে। এই আত্মটা যদি চলে যায়,
তাহলে সঙ্গীত বা যে কোনো রকমের শিল্পত্ব যেটা এটা দেখবই বাইরে, বাইরে জিনিসটা থাকলে ভিতরে চলে গেল। ওই জন্য কিন্তু এই জিনিসটা ওই জন্য এই জিনিসগুলো বেশি রাখতে পারবো না, কিন্তু সবাইকে ছবি যদি রাখবে, এদের মধ্যে যে ভালোবাসাটা ভক্তি আছে এইগুলো যদি রাখবে তাহলে কিন্তু ভালোভাবে আমার চলাতে পারে। এখন কালকে অনুষ্ঠানে, আমি আজকে কথাবার্তা বলবো না, কালকে অনুষ্ঠানে আমরা এরকম ইত্যাদি জিনিস দেখাবো যার মধ্যে যত আছে সবাই কিন্তু থাকবে। তার মধ্যে সঙ্গীত থাকবে, তার মধ্যে ফাইন আর্ট থাকে, তার মধ্যে সাহিত্য, সব কিছু থাকে। আর বেশি বলবো না, আপনি কালকে নিজে চলে আসুন, দেখুন এই জিনিসটা মন্দির থেকেই এনেছে, কিন্তু সেটা দেখলে হয়তো বোঝায় না কি যে এরম বলতে বলতে বুঝিয়ে দিতে পারবে না যে শিকড়টা একটা পরিবারের মধ্যে কিরম ভাবে চলে আর কিরম ভাবে চলাতে হবে। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरं गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय वन्दे राधारमणं मुदारम्। वन्दे श्री राधारमणं मुदारम्। कनककुण्डल प्रचल प्रकार कट निकट पीत पट मत वरीरघहार
बने विविध विलास गोपिकनाथ रमय नमस्कार। आज के कार्यक्रम शायद आप लोगों को पता हो गया ये सांझी कला के ऊपर है। ये जो इस समय कीर्तन होने जा रहा है ये ब्रज के मंदिर में सांझी उत्सव के अंतर्गत गाया जाता है। ये सांझी उत्सव क्या है? इस उत्सव में सभी कलाओं का मिलन होता है। सांझी की जो इस उत्सव की प्रमुख वस्तु राधा कृष्ण का जुगल स्वरूप, जिनका दर्शन आपने किया होगा बाहर मंडप में। जो सांझी का चित्रकला द्वारा विरचित किया गया है, वहाँ पर उसको प्रस्तुत करने के लिए वृंदावन से कलाकार श्री सौरभ गोस्वामी जी आए हैं आपके पास इस अद्भुत कला को पहुंचाने के लिए। परंतु इस सांझी का जो ब्रज की लोक परंपरा से उत्पन्न हुई, इसकी ये विशेषता है कि ये केवल चित्रकला का उत्सव नहीं है। वो इसमें पूरे, जो मैंने कल बोला, पूरे कला परिवार, इसके सब सदस्यों का मिलन होता है। सब इस कला परिवार के सब सदस्य इसमें भाग लेते हैं। केंद्र में अब ऐसा है कि आज की जो व्यवस्था है यहाँ की, जो जगह की व्यवस्था है कि सांझी जो रची हुई सांझी वहाँ बाहर मंडप में रखी है, हमको यहाँ मंच पर बैठना है, कीर्तन करना है। इसमें हमको तो ये असुविधा होती है कि हमें यहाँ से सीधे बस वहाँ सिद्धि तक का दर्शन हो सकता है, हमें तो सांझी का दर्शन नहीं हो सकता है। परंतु इसका जो मूल परिवेश है ब्रज के मंदिरों में, वो वहाँ पर ठाकुर स्वरूप के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। इसमें सांझी का जो डिज़ाइन रहता है बीच में रहता है और कीर्तनकार इसके सामने अपना गायन प्रस्तुत करता है। इसमें होता है क्या कि सांझी के भीतर में, उसके होड़ में जो राधा कृष्ण का साकार माने चित्रित किया गया स्वरूप है। फिर ये जो डिज़ाइन है ये उस जो भीतर में बसी हुई उस दिव्य शक्ति का विस्तार है। विस्तार किंतु साकार में नहीं, आकार में है। फिर पहुंचता है ये विस्तार कीर्तनकार तक, वो फिर उसको साकार बना देता है, क्योंकि वो तो जो ब्रज के साहित्य में जो पदों में वर्णित किया जाता है वो तो फिर साकार है, उसका मन तो शब्दों में वर्णन होता है, और स्वर जो उसके साथ जाता है वो फिर आकार हो जाता है। माने चारों तरफ साकार आकार मूर्तन अमूर्तन होकर ये दिव्य शक्ति विस्तृत हो जाती है, फैल जाती है। इसमें केवल संगीत और चित्रकला का नहीं है, इसमें नृत्य भी होता है, नाटक भी होता है, साहित्य, जैसे मैंने कल बताया, सभी कलाओं का मिलन होता है। तो आज मैं जो अभी कीर्तन प्रस्तुत होने जा रही हूँ वो ऐसा माने
आप लोगों में से जिन्होंने दर्शन किया है बाहर, आप उस चित्र का स्मरण कर लीजिएगा। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, आप कार्यक्रम के बाद मंडप में जा कर के दर्शन कीजिए, क्योंकि ये जो अभी वर्णित होने जा रहा है पदों में, ये इसी उत्सव का वर्णन है। जो सांझी, जो हम तो ब्रज में मनाते हैं सांझी उत्सव, वो तो प्रेम का ही उत्सव है, प्रेम की लीला है सांझी। तो ये सांझी लीला, ये प्रेम की जो लीला है, कैसे होती है, ये पदों में बताया जाता है। अब मुझे ये कहना है, क्योंकि यहाँ उपस्थित मेरे 2 जन बड़े गुरु भाई हैं। मेरे गुरु जी पंडित बितुर मलिक जी 20 साल वहाँ वृंदावन में वास करके ब्रज के मंदिरों में ही अपनी कला प्रस्तुत करते थे, और ऐसा शायद कोई उत्सव नहीं हुआ जिसमें उनका गाना नहीं होता था। तो मैं यदि आज ये इन कीर्तनों का गान करूँगी, तो इसमें तो गुरु जी का भी स्मरण रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन में उसी में डाल दिया, भगवान की सेवा में डाल दिया, और वहाँ वृंदावन में वास करके अपनी कला को भगवान को समर्पित कर दिया।
पनमा साज खेल बिता कर सबको साज खेल साज खेल साज साज खेल खेल साज खेल साज खेल बिना कर सबको दो पोर से जमचल साज 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 खेल बिना कर सबको साज खेल बिना कर सबको दो पोर से जमचल सगर रात सगर रात सगर रात सगर रात सूरख स्वामी पसी सगर रात सूरख स्वामी बसी सुख किया पार सुख किया पार सुख किया पार सगर रात सूरख स्वामी बसी सुख किया पार सखियन संग 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 राधिका विनत विनत सुमनन सुमनन बनमाय विनत सुमनन बनमाय 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 साजी पूजन को तुरही तार तार कदम कदम के चाय सखियन संग सखियन संग सखियन संग राधिका सखियन 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 संग सांझ खेल सांझ खेल सांझ खेल सांझ खेल खेल बिन कर सबको दो पोरे सेज मझार सगर रात सूरख स्वामी बसी सुख किया पार सुख किया अपार सखियन संग सखियन संग सखियन संग सखियन संग भला में लगायो तू जात घर गायले आए हुआ अकेले साँझ साँझ के कुसुम लेन भला में लगायो तो जात घर गायले आए हो अकेले आए 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 हो अकेले साँझ आए हो आए 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 हो अकेले साँझ साँझ के कुसुम लेन भला में लगाया तो जात घर गायले आयो घन घोर में सुझते नहीं कछुगे आयो आयो घन घोर में सुझते नहीं कछुगे चौधरी चटक रंग निरते बचाए आए हो अकेले साँझ साँझ के
चमक चक छोड़ी ते डरत हो चपल चमक चपल चमक चक छोड़ी ते डरत चपल चमक चक छोड़ी ते डरत निर्मोही अंग संग क्यों ना लगाए आई हुआ खेले आई 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 हुआ खेले साँझ आई हुआ खेले साँझ आई हुआ खेले साँझ सांझी के को तो मिलना भालो मिल गायो तो जत कर गाले आयो भने करे सुजत नाई कचुके आयो आयो कने करे आयो आयो कने करे आयो भने गोरे में सुजत नाई कचुके आयो आयो कने गोरे में सुजत नाई कचुके चुदरी चतक रंग निरत बचाले आए हुआ खेले साँझ सांझी के को तो मिलना भालो मिल गायो तो जत कर गाले चपल चतक चपल चमक चक छोरी ते डरत है चक छोरी ते डरत है निर्मोही अंग संग क्यों ना लगाए ले आई हुआ खेले आई 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 हुआ खेले साँझ सांझी के को सो मिलना भलो मिल गाया तो जत कर गाले कहवत आंसू जन खींचिए पहना मान कहवत आंसू जन कहवत आंसू जन खींचिए पहना मान कहवत आंसू जन खींचिए पहना मान यही है सयान कारी कामरी उड़ाए ले आई 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 हुआ खेले साँझ सांझी के को सो मिलना भालो मिल गायो तो जत कर गाले भालो मिल गायो तो जत कर गाले भालो मिल गायो तो जत घर गाए
मोती माल ले छूतरी अखेले आली हो जो अखेले अलबेली 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 आली हो जो अखेले करन सो कर गह बंगरी फूतरी काम गैल बन में लूतरी आई नंददास प्रभु नंददास 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 प्रभु पिय मिले टगर आए पहल प्रीत होते आए जाए दूती नंददास प्रभु पिय मिले री डगर आया आए पहल प्रीत होते अब जाए तू तेरी आली आली हो जो अखेली अलबेली कौंजन में फूल तो चमेली चुनवे को जाए जू तेरी आई नंददास प्रभु नंददास प्रभु पिय मिले रे डगर आई पहल प्रीत होती अब जाए तू तेरी आली हो जो आके अलबेली आली हो जो अकेली आली हो जो अकेली आली हो जो अकेली मध्यम साजी पूजन आवे कोई के गोपे किशोरी
भोजन आवे साँझी साँझी भोजन आवे साँझी साँझी भोजन आवे भोजन आवे भोजन आवे भान पवन राधा जुगे गुण भान पवन राधा जुगे गुण गावत गावत आवे कोई के गोप किशोरी गौरी साँझी भोजन आवे साँझी 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 भोजन आवे साँझी 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 भोजन आवे आले नागरिया मिले नैन दोन के नागरिया मिले नैन दोन के देख देख मन भावे देख 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 मन भावे देख देख मन भावे मन भावे मन भावे कोई के गोप किशोरी करे साँझी भोजन आवे साँझी भोजन आवे साँझी साँझी भोजन आवे गोप किशोरी करे साँझी भोजन साँझी साँझी भोजन आवे आय कर सिंगार चला भूषण दलियन कमल तरावे भान भुवन राधा जुगे गुण गावत गावत आवे नगरिया मिले नागरिया मिले नैन दोन के नागरिया मिले नैन दोन के देख देख मन भावे देख 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 मन भावे